I hope you all are well. So today I am going to teach you your third chapter of science, that is food and health. It's very easy and common topic which we are reading from our previous classes. But here you will learn something different, like components of food. Okay? So what is the name of the chapter is food and health. So how we can maintain our health with food. So here is one activity given to you that you have to find out names of components of food from this box given below. One has been done for you, that is fat. Clear? Now you are confused that ma'am what are other names. So for that we have to continue with the chapter reading. And here I am going to start it with chapter reading, where first topic is components of food. Okay. Before that, let me tell you that why we are eating food. We need food to get energy, to study, to play and work, grow and stay healthy. See beta, when have you seen your mother on fasting? जब वो fast करते हैं, that particular day वो थोड़ा सा अपना काम slow कर देते हैं, that वो ज़्यादा rest लेना पसंद करते हैं rather than keep on working. Regular days में जो वो work करते हैं, that is only because she is eating on regular intervals, breakfast, lunch and dinner. And meanwhile उनके during जो वो brunch और evening में snacks लेते हैं, तो वो क्या होता है कि time to time उनको energy मिलती रहती है. But see in the case of fasting में क्या होता है कि वो नहीं खाते, तो that means उनका थोड़ा सा work का जो process है वो slow हो जाता है. तो इसीलिए regular activities के लिए you also need to eat proper food. Why? Because we need energy for study, for other activities, to grow and stay healthy. Previous classes we have learned about various components of food. In this we'll revise the components of food, discuss the importance of healthy food, harmful effects of junk food on your health. Okay? Let's start with the first topic, that is components of food. Food contains some essential substance called nutrient. There are 5 main nutrients present in our food. 5 main. There are 2 other nutrients which we'll talk later. Firstly, 5 main. They are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Let's repeat. They are carbohydrates, then fats, proteins, vitamins, minerals. Roughage and water. I told you there were 2 another, that were roughage and water are 2 other components of food. Okay. Now comes to the next page quickly. Here in this page we will talk about components of food in detail. We will talk about components of food in detail. Okay. First let me erase this. Alright. So let's talk about first component of food, that is carbohydrates. Sources and function. In this table you'll know about हमें कहाँ से मिलता है carbohydrate and what are the functions. So sources, cereals जो होते हैं, cereals हम कहते हैं like rice, wheat, fruits, potatoes and honey. इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. और क्या फंक्शंस है इसके? They give us energy. कार्बोहाइड्रेट खाने से एनर्जी मिलती है. तभी बच्चों को कहा जाता है कि ज्यादा कार्ब्स वो ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों को एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है. ऑल द टाइम दे आर प्लेइंग, दे आर स्टडिंग, दे आर रनिंग. सो these kind of activities require lots of carbs. Clear? Next is fats. Oil, butter, ghee, cream, milk, dry fruits. इन सब में फैट्स होता है, which is also very essential for a growing age child like you. आपके लिए भी ये चीजें रिक्वायर्ड है. They gives us energy. Natural है कि जब हमें sometime morning हम स्कूल के लिए भागते हैं, we are rushing towards the van, तो मम्मा हमारे पॉकेट में कुछ almonds और cashews रख देते हैं. That is only कि अगर आपको लो फील हो रहा तो you can take energy back from those nuts. Okay. Comes to protein. Milk, cheese, eggs, meat, fish, soya beans and pulses. ये sources हैं protein के. They build muscles, repair the body and help us to grow. जो बच्चे होते हैं like your age growing children, they require lots of protein. तो
प्रोटीन कहाँ से आता है? टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन बेसिकली, वेज और नॉन वेज दोनों तरीके से हम ले सकते हैं. बेसिकली जो नॉन वेजिटेरियन है दे कैन टेक फिश ले सकते हैं वो मीट, अदरवाइज मिल्क, चीज, सोयाबीन स्पेशली एंड देन पल्सेस, इनसे उनको प्रोटीन मिलता है. क्लियर? और क्या काम करता है बॉडी में? ये मसल्स को रिपेयर करता है. जो प्रोटीन है इट रिपेयर्स आवर मसल्स. लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज विटामिन्स. दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट. हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं. तो हमें किससे मिलते हैं ये कंपोनेंट्स? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, फिश एंड मिल्क. दैट्स व्हाट हम आपको कहते हैं कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. अगर कोई बच्चा ऑल द टाइम कार्ब्स ले रहा है तो भी उसकी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसको विटामिन्स नहीं मिल रहे. क्योंकि हमें विटामिन्स किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड फाइट अगेंस्ट द डिजीज. जो भी डिजीज हमारी बॉडी में लगता है, बीमारी लगती है, वो हमें विटामिन्स ही हेल्प करता है रिकवर करने में. तो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, fruits, eggs, fish and milk is required. Next component is minerals. They are also required in small amount. So they are specially available again in green leafy vegetables, fruits, milks, egg and salt. तो ये कैसे help करते हैं हमारे? They help in functioning of body and keep body healthy. तो हमें minerals भी इन चीजों से मिलते हैं और हमारी बॉडी के लिए ये भी उतने ही equally important है. Getting my point? Now next is roughage, which is quite main thing which I can told you. roughage आपको सबको पता है कि कहाँ से मिलता है? सैलेड से. roughage is required for digestion. हम सब खा लेते हैं but for digestion we need roughage. जो हम चपाती खाते हैं, चपाती के अंदर भी जो हमारा व्हीट का फ्लोर होता है उसके अंदर भी अगर हम उसको प्रॉपरली यूज करते हैं एज इट इज, सीव के साथ उसको नहीं हम करते तो उसके अंदर ऑलरेडी रफेज होता है. क्लियर? तभी हम आपको मना करते हैं रिफाइंड फ्लावर नहीं खाना. रिफाइंड फ्लावर इज मैदा विच इज रियली हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. क्लियर? सो हियर रफेज फाइबर्स प्रेजेंट इन आवर फूड आर कॉल्ड रफेज. होल ग्रेन, एज आई टोल्ड यू, रिफाइंड फ्लावर के अंदर होल ग्रेन नहीं होता. हमें प्रॉपर व्हीट को एज इट इज कंज्यूम करना चाहिए. जब वो व्हीट आती है उसको ऐसे ही हम घर पे जब लेकर आते हैं तो कभी भी उसको सीड के साथ हमें छनना नहीं चाहिए, एज इट इज देना चाहिए. वो होल ग्रेन है. फ्रूट्स, हम क्यूकम्बर खाते हैं, यूजुअली क्यूकम्बर का हम जो पील है उसका जो छिलका है रिमूव करके फेंक देते हैं बट उसमें ज्यादा रफेज है. क्लियर? तो हमें उसको ऐसे ही कट करके खाना चाहिए. एंड देन वेजिटेबल्स, हमें रॉ वेजिटेबल्स खानी चाहिए लाइक कैरेट, radish, we can have turnip in winters. In summer we can there are less options. Yes, we can take it in as a cucumber. Okay, many other options are present also. So they help us undigested food को body से बाहर निकालने में help करता है. That is roughage. Roughage and water. I told you there were two another, that were roughage and water are two other components of food. Okay. Now comes to the next page quickly. Here in this page we will talk about components of food in detail. We will talk about components of food in detail. Okay. First let me erase this. Alright. So let's talk about first component of food, that is carbohydrates. Sources and function. In this table you'll know about हमें कहाँ से मिलता है carbohydrate and what are the functions. So sources, cereals जो होते हैं, cereals हम कहते हैं like rice, wheat, fruits, potatoes and honey. इनसे हमें carbohydrate मिलता है. और क्या functions है इसके? They give us energy. Carbohydrate खाने से एनर्जी मिलती है. तभी बच्चों को कहा जाता है कि ज्यादा कार्ब्स वो ले सकते हैं क्योंकि बच्चों को एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है. ऑल द टाइम दे आर प्लेइंग, दे आर स्टडिंग, दे आर रनिंग, सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज रिक्वायर लॉट्स ऑफ कार्ब्स. क्लियर? नेक्स्ट इज फैट्स. ऑयल, बटर, घी, क्रीम, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, इन सब में फैट्स होता है विच इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर अ ग्रोइंग एज चाइल्ड लाइक यू.
आपके लिए भी ये चीजें रिक्वायर्ड है। दे गिव्स अस एनर्जी। नेचुरल है कि जब हमें समटाइम मॉर्निंग हम स्कूल के लिए भागते हैं, वी आर रशिंग टुवर्ड्स द वैन, तो मम्मा हमारे पॉकेट में कुछ आमंड्स और कैश्यूज रख देते हैं। दैट इज ओनली कि अगर आपको लो फील हो रहा तो यू कैन टेक एनर्जी बैक फ्रॉम दोज nuts. Okay, comes to protein. Milk, cheese, eggs, meat, fish, soya beans and pulses. ये sources हैं protein के. They build muscles, repair the body and help us to grow. जो बच्चे होते हैं like your age, growing children, they require lots of protein. तो प्रोटीन कहाँ से आता है? 2 types of protein basically, वेज और नॉन वेज दोनों तरीके से हम ले सकते हैं। बेसिकली जो नॉन वेजिटेरियन है दे कैन टेक फिश ले सकते हैं, वो मीट, अदरवाइज मिल्क, चीज, सोयाबीन स्पेशली एंड देन पल्सेस, इनसे उनको प्रोटीन मिलता है। क्लियर? और क्या काम करता है बॉडी में? ये मसल्स को रिपेयर करता है। जो प्रोटीन है इट रिपेयर्स आवर मसल्स। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कॉम्पोनेंट दैट इज विटामिन्स। They are required in small amount. हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमें किससे मिलते हैं? फ्रूट्स, एग्स, फिश एंड मिल्क। दैट्स व्हाट हम आपको कहते हैं कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अगर कोई बच्चा ऑल द टाइम कार्ब्स ले रहा है तो भी उसकी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसको विटामिन्स नहीं मिल रहे। क्योंकि हमें विटामिन्स किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड फाइट अगेंस्ट द डिजीज। जो भी डिजीज हमारी बॉडी में लगता है, बीमारी लगती है, वो हमें विटामिन्स ही हेल्प करता है रिकवर करने में। तो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, फिश एंड मिल्क इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज मिनरल्स। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। तो दे आर स्पेशली अवेलेबल अगेन इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग एंड सॉल्ट। तो ये कैसे हेल्प करते हैं हमारे? दे हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड कीप बॉडी हेल्दी। तो हमें मिनरल्स भी इन चीजों से मिलते हैं और हमारी बॉडी के लिए ये भी उतने ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट इज रफेज, विच इज क्वाइट मेन थिंग विच आई कैन टोल्ड यू। रफेज आपको सबको पता है कि कहाँ से मिलता है? सैलेड से। रफेज इज रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन। हम सब खा लेते हैं बट फॉर डाइजेशन वी नीड रफेज। जो हम चपाती खाते हैं, चपाती के अंदर भी जो हमारा व्हीट का फ्लोर होता है उसके अंदर भी अगर हम उसको प्रॉपरली यूज करते हैं एज इट इज, सीव के साथ उसको नहीं हम करते तो उसके अंदर ऑलरेडी रफेज होता है। क्लियर? तभी हम आपको मना करते हैं रिफाइंड फ्लावर नहीं खाना। रिफाइंड फ्लावर इज मैदा विच इज रियली हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। क्लियर? So here roughage fibers present in our food are called roughage. Whole grain, as I told you, refined flour के अंदर whole grain नहीं होता। हमें proper wheat को as it is consume करना चाहिए। जब वो wheat आती है उसको ऐसे ही हम घर पे जब लेकर आते हैं तो कभी भी उसको सीव के साथ हमें छनना नहीं चाहिए, as it is देना चाहिए। वो whole grain है। Fruits, हम क्यूकम्बर खाते हैं, यूजुअली क्यूकम्बर का हम जो पील है उसका जो छिलका है रिमूव करके फेंक देते हैं बट उसमें ज्यादा रफेज है। क्लियर? तो हमें उसको ऐसे ही कट करके खाना चाहिए। एंड देन वेजिटेबल्स, हमें रॉ वेजिटेबल्स खानी चाहिए लाइक कैरेट, रेडिश, वी कैन हैव टर्निप इन विंटर्स। इन समर वी कैन देयर आर लेस ऑप्शंस, यस वी कैन टेक इट इन एज अ क्यूकम्बर। ओके, मेनी अदर ऑप्शंस आर प्रेजेंट ऑल्सो। सो दे हेल्प अस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। दैट इज रफेज।